ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम अनिल जी, म्यूट कर देना। हाँ, हरिओम हरिओम म्यूट कर देना। सॉरी, म्यूट कर देना आप। हरिओम। Welcome to today's satsang. I am going to chant the Mangala Charan of Tattvabodh, which we are studying. Vasudevendra Yogendram Natva Jnanapradam Gurum Mumukshunam Hitarthaya Tattvabodho Vidhiyate. What Bhagwan Shankaracharya has expounded, we are trying to understand and imbibe. What is Tattva Vivek? Atma Satyam Tadanyat Sarvam Mithiyati. Only Atma is Satya. And we have gone into the detail of what is Atma, what it is not, and what is the Sarup, and its nature as a Sakshi. Then maybe it's not correct to say nature, that it is a Sakshi. Nature is Satchidana. Then now the question is, it says, other than this, everything else is Mithyati. And in case of Brahman, they say, other than Brahma, everything else is Anitya. So Mithya is also that which is changing and therefore Anitya. So whether you call it Anitya or you call it Mithya, that both are the same. So now the question arises, what is this Mithya? So in an effort to answer that, what we are now studying, so we have studied Atma, and then related to Atma we have studied this body of ours. So we have said this is at the Vyashti level. But this Vyashti, this self, at the individual level, it belongs to the Jagat. So whatever the Jagat is, that we are. So now, what is this Mithya? We are trying to understand from the point of view of Jagat. Right? And in that, Bhashyakar has introduced the term Maya and said it is Ya Ma Sa Maya. That which is not, that is Maya. So basically, this so-called illusion that we are subject to is nothing else but Maya. And hence the need to study how this Maya has created this illusion, in what order, and so forth. But remember the fact that has been written, mentioned, that Maya is Brahma Ashrit. So whatever it does, it doesn't do anything different from Brahma. So if something has created, the Upadan Nimitt Karan, we studied yesterday, what is Upadan Nimitt Karan? The material and efficient cause. That all remains Brahma only. Okay? Any questions? Because this is going to be a slightly testing ground where things are not so obvious. Narayan? हाँ नारायण बताएं राहुल जी. Yeah, I would like to share some thoughts on this subject, हाँ जी. specifically on Maya, हाँ जी. based on my study of Vedanta Sar के स्वाध्याय के लिए. बिल्कुल. I think that maybe the future journey will be a bit smoother. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. Please go ahead. Yeah. So, in Tattvabodha,
The Vakya is Atma Satyam Adanyat Sarva Mithyeti. हाँ. That's one Vakya. And the second one is what is Maya? Brahma Shruta Sattva Raja Guna Tama. Just 1 minute. I just don't want to misspell it. I'm looking for that Vakya. I'll read out for you. Okay. हाँ. You got it? I have got it. Okay. Brahma Shaya Sattva Raja Tamo Gunatmika Maya Asti. हाँ. Okay. Now Acharya has given this in a very compact form, and Sadananda Yogindra, the author of Vedanta Sar, he has expanded it a little bit. Okay. So what he says is Vastu Satchidananda Advaya Brahma Ajnanadi Sakala Jada Samoha Avastu. Now we have spoken of Satya and Mithya, and this Vedanta Sar author says Vastu and Avastu. So Vastu means again Satya, Avastu means that which don't fall in the category of Satya. It includes both Asat and Mithya also. Right. So that's one thing. And then again, when he defines Maya, he is a little bit elaborate on that. Now Maya, here he says Ajnana. Now Ajnana and Maya, they are synonymous. Yeah. At least in the Vedanta Sar, they are synonymous. Ajnana is Maya. So he says Ajnanam tu Sat Asat Anirvachniya Trigunaatmaka Jnana Virodhi Bhava Rupam Yat Kinchita. So that's what he says. He gave it elaborate. So Sat Asat Anirvachniya. So actually, initially I used to get confused. Even Brahma is called Anirvachniya and Maya is also called Anirvachniya. So how can both be called Anirvachniya? Do both fall in the same category? Then later on I realized कि जब माया को हम लोग अनिर्वचनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो माया को जब हम लोग कहते हैं, then the adjective added before that, सत असत अनिर्वचनीय. That means Maya cannot be defined as Sat or Asat. We have done this. I think this is just a kind of revision for us. Sat का क्या? Why it is not Sat and why it is not Asat? It is not Sat because उसका बाद हो जाता है. It can be negated. The definition of Sat is Trikala Badhitvam. That which cannot be negated in any time. तो उसका बात हो जाता है. How बात कैसे हो जाता है? ज्ञान से हो जाता है. तो माया ज्ञान से बाधित हो जाती है, तो वो सत्य नहीं है. असत बोलेंगे तो कुछ भी नहीं है क्या माया? जैसे ख कुछ पे होता है, हेयर ऑन क्या कहते हैं उसको, खरगोश के सिंग होते हैं, वैसा है क्या कुछ? नो. इफेक्ट ऑफ माया आर फेल्ट. हम लोग जो है माया का इफेक्ट फील कर सकते हैं. ये जो सामने इतना जो सृष्टि जो प्रपंच हो रहा है, किसका इफेक्ट है? माया का. तो हम लोग फील कर रहे हैं उसका इफेक्ट. उसको असत भी नहीं बोल सकते. तो जो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, उसको कहते हैं मिथ्या. दिखता है मगर है नहीं. That's little bit informal way to put it. Right. तो that is the category Maya falls into. जी हाँ. तो एक तो और ब्रह्म को अनिर्वचनीय क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता. तो इसमें ना एक महात्मा जी से मैंने सुना था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था. तो वो कहते ब्रह्म का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, ब्रह्म वाणी से परे है. मतलब वो क्या 7वें आसमान में बैठा है क्या? वैसे ही आता है ना फीलिंग. What does it mean कि ब्रह्म 7वें आसमान है, परे है, कुछ दूर है, इसलिए वाणी से वर्णन दिया नहीं जा सकता. That's not the case. He gave the example that eyes cannot see itself. कोई अगर कहे मैं दुनिया भर में यहाँ वहाँ सब जगह पे घूमा, लेकिन मैंने मेरे आंखें नहीं देखी. जिसने भी दिखाया आईना दिखाया, रिफ्लेक्शन, मुझे मेरी आंखें नहीं दिखी. तो इन महात्मा जी की शैली थोड़ी आनंद की थी. तो कहते मेरे पास आता तो मेरी एक आंख, मैं उसकी एक आंख निकाल के हाथ पे रख देता, ये ले देख. और फिर बोला ये तो एक ही आंख है. तो वो दूसरी भी आंख निकाल के देखा, अब देख. तो द वेरी फैक्ट दैट वी आर सीइंग इज द प्रूफ दैट वी हैव आईज. तो आंखें खुद को देख नहीं सकती है, इट नीड नॉट सी इटसेल्फ. उसी तरह से जो है ब्रह्म जो है वो केनोपनिषद में शुरू होता है ना कि वाणी की वाणी है, दृष्टि की दृष्टि है. तो वाणी उसका वर्णन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वाणी के पीछे वो ही बैठा हुआ है. वाणी जो चलती है उसी की सत्ता से चलती है. जी हाँ. हाँ नहीं ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हाँ. उसके वजह से वो अनिर्वचनीय है ब्रह्म. और माया अनिर्वचनीय इसलिए कि सत असत ध्यान. जी हाँ. तो वो मेरे ख्याल से
डिस्टिंक्शन थोड़ा सा ये था कि मुझे कंफ्यूजन होता था, लेकिन बाद में मुझे जब थोड़ा बहुत गहरा सोचा तब पता चला कि नहीं, ये डिस्टिंक्शन है इसमें ना। और एक चीज है, त्रिगुणात्मक तो अपने को पता ही है, ज्ञान विरोधी भी कहा गया है। ज्ञान विरोधी मतलब ज्ञान के द्वारा जिसका नाश होता है, बात होता है। और एक और चीज कही है, भाव रूपम, समथिंग पॉजिटिव। तो समथिंग पॉजिटिव का मतलब क्या? तो ये मुझे पता नहीं ये कितना ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से मैच करता हुआ, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि बाकी जो अज्ञान है, कि अज्ञान मुझे हिब्रू नहीं आता, मुझे अरबी नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, उसका इफेक्ट क्या मुझे फील करता? उसका तो इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं स्वयं को नहीं जानता, इसका इफेक्ट क्या सामने आया? ये पूरा प्रपंच खड़ा हो गया। जस्ट करेक्ट मी, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच आई हैव रेड एनीवेयर। तो अगर कुछ गलत है तो ये बोलो कि बाकी के जो अज्ञान हम लोग बोलते हैं, जैसे किसी भाषा का अज्ञान हो, किसी कला का अज्ञान हो, इट जस्ट एब्सेंस ऑफ नॉलेज। लेकिन जब हम लोग स्वरूप का अज्ञान बोलते हैं, देन उसका एक बड़ा भारी इफेक्ट सामने खड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई थिंक उसको यत् किंचित कहा गया है, समथिंग पॉजिटिव। सॉरी, नॉट यत् किंचित, भाव रूपम, समथिंग पॉजिटिव, तो वो कहा गया है। तो वो कुछ चीजें थी जो मैंने what is भाव रूपम? You are talking of Maya? या भाव रूपम, माया को। And how are you मतलब, हाँ कहिए। How are you illustrating it? You are saying like knowledge of language. This is how you are illustrating it? हाँ नहीं, yes, what I say is, see, अज्ञान, यहाँ पे माया की जगह अज्ञान वर्ड यूज किया हुआ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ऑल द डेफिनेशन तो उसके हिसाब से। हाँ ठीक है। तो अगर मुझे लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का अज्ञान है, तो इट जस्ट एब्सेंस ऑफ नॉलेज, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन जब हम लोग जब स्वरूप का ज्ञान होता है, ओके, तो इट जस्ट नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, ये पूरी सृष्टि सामने खड़ी हो जाती है। वैसे ये लग रहा है। नहीं, आई थिंक वो जो है थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। जो एब्सेंस, जो नॉलेज वाली बात आप कह रहे हो ना, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, वो जो लैंग्वेज का इलस्ट्रेशन है वो एब्सेंस ऑफ नॉलेज का बिल्कुल ठीक है। उसमें एक चीज़ और भी आ जाती है, ये आपकी एब्सेंस कब से है, राइट? वो तो अनादिकाल से है। तो ये लैंग्वेज की भी नॉलेज जो है वो भी अनादिकाल से है। सही बात तो है। ये एब्सेंस उस दिन खत्म हो गई जिस दिन आपने किताब उठा ली लैंग्वेज की। सही बात है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन तो देते हैं, बट ये वाला जो इलस्ट्रेशन आप दे रहे हो कि नॉट नोइंग द सबस्ट्रेटम देन वर्ल्ड गेट्स क्रिएटेड, तो वही माया है ना, दैट इज माया। अब वो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब नहीं समझ आया मुझे, भाव का वो कहाँ, कैसे आप कह रहे हो? मुझे तो ये लगा कि अदर टाइप ऑफ इग्नोरेंस और ये इग्नोरेंस, दोनों में कुछ तो फर्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इग्नोरेंस है जो लाइफ में आते हैं, है बहुत सारी चीजें जिसके बारे में इग्नोर, क्योंकि उसके वजह से कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं आप नहीं, वो तो जब भी आपकी इग्नोरेंस होगी, वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि इट हैज टू शक्तिज, आवरण एंड विक्षेप। तो आपको रोप की नॉलेज नहीं है, उस पर आवरण डला हुआ है, तो आप विक्षेप करेंगे क्योंकि रोप दिख गई। आप विक्षेप नहीं होता। नहीं सुनिए, अब वो जो लैंग्वेज का आपने लैंग्वेज का एग्जाम्पल लिया, आपके सामने किताब रखी जाए हिब्रू की, आप विक्षेप तभी करोगे ना कि आपको हिब्रू तो आती नहीं, अब आप विक्षेप तब शुरू करोगे। ठीक है, अब जैसे मेरा ख्याल अनिल जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई किसी, एम आई राइट अनिल जी, आपने दिया था कि वो इजरायली ने कहा, जू ने कहा कि ये सारी जो है योगा जो है वो जूइश देन है। डिड यू से दैट अनिल जी? ओके, somebody was saying. No, I didn't say that. Okay, somebody was saying कि जी वो जो है yoga has come from the Jews, because if you see the letters used, they are all letters which are the postures of yoga. That is विक्षेप। आपको तो आता नहीं, तो इसलिए आप जो विक्षेप कर लो। तो एब्सेंस ऑफ नॉलेज अलोन आपने लिया केस
बट विक्षेप के लिए आप सामने दिखाओ, तो सबस्ट्रेटम तो बनाओ ना आप, तब आप विक्षेप करोगे. दिस इज हाउ आई एम सीइंग इट. क्या समझा, वो मुझे भी एक्चुअली भाव रूपम ये शब्द को हजम करने में थोड़ा. हाँ, वो उसके ऊपर विचार करेंगे अलग से, वो विचार करके फिर बात करते हैं कि भी क्या हो सकता है वो है. क्या श्योर. और ये जो ब्रह्म इज ऑल्सो अनिर्वचनीय एंड माया इज ऑल्सो अनिर्वचनीय, ये आपने जो क्लैरिफिकेशन दी, ये गुरुजी ने अपना तत्वबोध में भी दी हुई है. ये हमने या तो लास्ट टाइम पढ़ी थी, या तो हमने पढ़ी थी, या हम अभी पढ़ेंगे. हैं शायद आगे होगा. हाँ, शायद आ चुका है. हाँ, आ चुका है ना. दैट्स ये वाली बात आ चुकी है, कल ही आई होगी, क्योंकि अनिर्वचनीय आ गया ना. चलिए, सो अनिर्वचनीय कल अच्छा आ गया होगा. माया, व्हाट इज माया ना, मतलब जब कॉजल बॉडी भी कही है तब भी उन्होंने अनिर्वचनीय कहा है, इग्नोरेंस को अनिर्वचनीय कहा है. तो नहीं, माय पॉइंट ऑफ माय कंफ्यूजन रिगार्डिंग दोनों को अनिर्वचनीय कहते हैं. तो वो हुआ, जब माया को अनिर्वचनीय कहा जाता है तो उसके पीछे एडजेक्टिव लगाया जाता है सत असत अनिर्वचनीय. हाँ कही था. हाँ, लेकिन वो यहाँ गुरुजी ने लिया है, स्वामी तेजो में नंदा जी ने, तो अभी टाइम लग जाएगा. आई विल सेंड यू द पेज नंबर. और दूसरी बात ये है, वो बेसिकली जो आपने बताया, तो ये ब्रह्म के संदर्भ में वो ही इज़ द सबस्ट्रेटम एंड ही इज़ सटल, जहाँ हमारे परसेप्शन नहीं है. whereas in case of Maya, it creates the illusion which goes away on knowledge. जैसे आपका ड्रीम भी है या आपका मिराज भी है, whereas in case of Brahma, it appears on illusion, it appears on ज्ञान. जब जैसे माया का illusion वो भंग हुआ, अज्ञान खत्म हुआ, तो वो प्रत्यक्ष वो नॉलेज जो है, सेल्फ नॉलेज प्रेजेंट्स इटसेल्फ. ठीक है. अच्छा, एक और इसलिए कल अपन ने जो बात की थी विक्षेप और आवरण शक्तियों की. हाँ, तो थोड़ा सा ये चल रहा था कि पहले विक्षेप बाद में आवरण. तो आखिर में यही डिसाइड हुआ था कि इसमें ज्यादा एकदम लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलने वाला नहीं है. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. और बाद में मेरे कि है आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है थोड़ा. हाँ, अभी ठीक आई. अभी ठीक आ रही है. हाँ, आप फिर से बताइए. हाँ, मैं कह रहा था कि जो ज्ञानी पुरुष है, ठीक है, फिर ब्रेक कर गई. तो हो गई, वो भंग गई. लेकिन फिर भी इवन आफ्टर दैट सी अ चेयर एज अ चेयर, बाधित ही दिखता है, लेकिन दिखता है. ये चावल है, ये पानी है. तो एक है कि जो है वो कहीं ना कहीं है. हाँ, वो अभी नहीं हो रही बात है. राहुल जी वो नहीं, आपका बहुत ब्रेक कर रही है. आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है. आवाज़ ब्रेक कर रही है. हाँ, वो मेरा ख्याल आपका जो कनेक्शन है वो बहुत वो नहीं है स्टेबल, ऐसा लगता है मुझे. अच्छा, तो ठीक है, वो ग्रुप में देख लेते हैं फिर. हाँ, वो लिख के आप भेज देना है. हाँ, ये ज्ञानी के बारे में जो आप कह रहे हो लिख के भेज देना. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो we'll as we were saying that we are studying now Maya to understand what is this other thing than Brahman, which is we are calling Mithya. So Mithya or Agyan, they are all Maya only. So how does the creation takes place? That we are now studying evolution of the 5 elements. So tata akashah sambhutah
आकाशाद वायुः, वायोस्तेजः, तेजस आपः, adbhayav prithvi. So he says, from Maya, space was born, from space air, from air fire, from fire water, from water earth. Sequence is space, air, fire, water, earth. So Maya first created the 5 elements in sequence. The process of creation is from the subtle to the gross. Subtlety is measured by an object's pervasiveness and the number of perceivable qualities it has. ये सब part of the law है. What is subtle? How pervasive it is and how many qualities it has. So lesser the number of qualities, the more pervasive and more subtle. So like Brahman is attributeless, gunatit. The more pervasive the object, the more subtle it is. The lesser the number of qualities, the subtler it is. Truth is the subtlest. It is all pervasive and beyond the cognition of any of the instruments of knowledge, as it is attributeless. Space is the first element created by Maya. It is the subtlest of the elements. It has the quality of sound. Sound travels in the medium of space, and space has an inherent sound. From space came air, which is less pervasive. It has the qualities of sound and touch. Therefore, it can be heard and felt. Fire emerged from air. It is less pervasive than air and has the qualities of sound, touch, color, and form. Sound coming from space, touch coming from air, color and form that fire has. And it therefore can be heard, felt, and seen. Water came next in sequence and is even less pervasive than the three mentioned above. It has the qualities of sound, touch, color and form, and taste, and can be heard, felt, seen, and tasted. Even though water is tasteless, all tastes are possible due to it. खाना देख के your mouth waters. That is a association. The last emerged the earth, which is the grossest and least pervasive. It has the qualities of sound, touch, color and form, taste and smell, and therefore be heard, touched, seen, tasted and smelt. These subtle elements are called tanmatras. अब हम लोग जो है अर्थ को देख सकते हैं, वाटर को देख सकते हैं, बट रिमेंबर these are the grossified forms. But these 5 elements, they come in as tanmatras, ungrossified. These subtle elements, all of them are subtle, including earth. First what came were these 5 elements which were all subtle and they are called tanmatras. ये कहीं इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वेदांत में जब तन्मात्रा यूज होगा तो इट मीन्स दिस सटल 5 एलिमेंट्स रेफर टू इन द सटल फॉर्म. ठीक है. They cannot be perceived by our sense organs. Only when they become gross can they be perceived as the sense objects. The material cause is never different from the created object. Maya is the material cause of the 5 elements, and therefore the 3 qualities of Maya pervade the 5 elements. What are the 3 qualities? As we have seen,
the three qualities are Sattva, Rajas, Tamas. These will pervade all the five elements. As we have seen, the ultimate material cause of the world can be the truth alone. Therefore, the truth pervades the five elements, just as gold pervades all gold ornaments and water pervades all the waves. ये एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं. कोई अगर आपसे पूछे सोने के अंदर सोने के आभूषण है या आभूषण के अंदर सोना है, क्या जवाब देंगे आप? आभूषण जो है सोने के अंदर है, सोना आभूषण के अंदर है. आभूषण क्योंकि सोने से बने हुए हैं तो सोना तो आभूषण में है. लेकिन जब सोना प्योर फॉर्म में है तो उसमें कोई आभूषण नहीं है. सिक्का है सोने का तो वो आभूषण तो नहीं है. अनलेस कि उसको आदमी गले में वैसे बना करके पहन ले. नहीं, क्वेश्चन आपने आंसर नहीं करा. सोने में आभूषण है या आभूषण में सोना है? अगर सोने का आभूषण है तो आभूषण में सोना है. आभूषण में सोना है. अपना अनु जी. मेरे को तो लगता है सोने में आभूषण है. सोने के बिना आभूषण का कोई अस्तित्व नहीं है. तो जैसे भी कहिए उसका सार तो यही है कि उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है. तो फाइनली क्या आंसर हुआ? दोनों कह सकते हैं. आभूषण सोने के बिना नहीं हो सकता है. अगर आभूषण है तो वो सोना है, लेकिन सोना आभूषण के बिना हो सकता है. ओके, वो तो आपने विस्तार में तो बता दिया. लेकिन अगर आपसे दोनों से पूछा जाए कि भाई सोने में आभूषण है, आभूषण में सोना है, तो आप इसके बारे में क्लियर कट क्या जवाब देंगे? ये क्वेश्चन था. तो आपका ये कि आभूषण में सोना है. I think they are mutually exclusive. They are exclusive. That means they are not related to each other. Inclusive. They are mutually inclusive. आप ये कह रहे हैं inclusive कह रहे हो, exclusive कह रहे हो? Inclusive. नहीं, मैं अनु जी से पूछ रहा हूँ. मैंने exclusive कहा. Exclusive कहा ना आपने. तो exclusive का मतलब कि they are not connected to each other. In the sense कि आभूषण सोने का नहीं, किसी आभूषण कुछ भी हो सकता है. It doesn't have to be सोना. No, we are and talking सोना of, doesn't have to be आभूषण. no, we are talking only of सोने का आभूषण. Let's not get confused about that. Okay. Question is, So then maybe mutually inclusive. हाँ वो तो ठीक है, but the point is what will you say? सोने में आभूषण है, आभूषण में सोना है. दोनों. ओके. वेव्स में ओशन है, ओशन में वेव्स है. ओशन में वेव्स है. ओशन में. और लेकिन आभूषण के जब समय आता है तो सोना जो है आभूषण में है. हाँ जी. है. उसी को मेल्ट करके बनाए. हाँ, तो सोना आभूषण में है, लेकिन वेव्स ओशन के अंदर हैं. आप समझ गए आप कहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी. तो ये जो है, ये संसार जो है ब्रह्मन में है, ब्रह्मन संसार में है. पॉइंट इज कैच द सबस्ट्रेटम. हाँ जी. सबस्ट्रेटम क्या है? ओशन इज द सबस्ट्रेटम. सो आभूषण जो है सोने में है और वेव्स ओशन में है. हाँ जी. और जगत ब्रह्म में है. हाँ जी. दैट इज द सबस्ट्रेटम. राइट. और ये गुरुजी ये कह रहे हैं, therefore the truth pervades the five elements just as gold pervades all gold ornaments and water all the waves. ठीक है. When does Maya create the five elements? At the time of dissolution, the three qualities of Maya, Sattva, Rajas, Tamas,
remain in their unmanifest form and in a state of equilibrium, samya avastha. When this balance is somehow disturbed, the process of creation begins. ये जो भी है ये आप सब लोग थोड़ा रिवाइज करें घर पे ज़रूर, क्योंकि ये कंसेप्ट्स जो है रिपीट तो नहीं होंगे, दे विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि आपने पढ़ लिया और समझ लिया है. हाँ जी. और ये listen to the recording once more. हाँ, रिकॉर्डिंग भी सुन लो, पढ़ भी लो. पर नहीं समझ आए तो फिर रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, बट अब पढ़ना तो ईजियर रहेगा ना. हाँ जी. चलिए, आई से द कंक्लूड. एनी क्वेश्चंस? ओके, आई से द कंक्लूडिंग प्रेयर. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. May the blessings of Lord be upon all of us and we may reach our destination. Hari Om.